both of you. Yes, you would have seen our press release which we made yesterday. The President of Myanmar is visiting India on an official visit. He will be arriving here on 30th and till 2nd he'll be here, 2nd of June. He'll be visiting Delhi. He also goes to Bodh Gaya and to Mumbai for business meetings. We will keep you updated with the agenda, but obviously he'll be meeting our Prime Minister, and where both leaders will discuss as to how to strengthen these ties further. There is also a important component, business component of the visit, which is as to how the two countries can together strengthen their economic ties as well. So this is an official visit, and we look forward to welcoming the President of Myanmar. Aishu, you also had questions about border security, connectivity, and other issues. Yes, all issues that form part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussion, and our idea would be as to how we take our ties, civilizational ties, friendly ties with Myanmar forward. On your question about help that we have sent, support, we have sent medical supplies to CDC Africa. This was handed over by our High Commissioner in Uganda to CDC office there. We look forward to further helping in whatever manner we can with the countries and with CDC Africa in dealing with this public health emergency that has happened on the continent. We will keep you updated as and when we have more developments on that account. But we have sent the first tranche of medical supplies to CDC Africa. WMCC की बैठक अभी हुई है चीन में, बीजिंग में. हमारे तरफ से हमारे संयुक्त सचिव उन्होंने इसको लीड किया, और जैसा कि हम लोगों ने बताया अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि ये जो बातें हुई ये अच्छी बातें हुई, आगे की तरफ जा रही है हमारी ये बातें, और आने वाले दिनों में जब और इस पे और बेहतर और प्रगति होगी उससे हम आपको वाकिफ़ कराते रहेंगे. जहाँ तक कश्मीर की मसले की बात है, उस पर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया है ये बताते हुए कि उस मुद्दे पर हमारा क्या पक्ष है. पहला सवाल आपका, हाँ, विदेश मंत्री की यात्रा हुई साइप्रस की. वहाँ पर वो एक यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो इनफॉर्मल बैठक थी उस पर उन्होंने हिस्सा लिया. उनका निमंत्रण इसके लिए वहाँ के विदेश मंत्री, साइप्रस के विदेश मंत्री और यूरोपियन यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव और वाइस प्रेसिडेंट है मैडम काया कालास, उनकी तरफ से आया था. और वहाँ पर कई एक विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है. साथ में उन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी बातचीत की, और साथ में उन्होंने साझा किया कि वहाँ पर किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, क्या गतिविधि चल रही है. ट्रेड टीम, we had a trade team which visited the United States in the month of April, if I'm not mistaken, and now we are expecting a team from the United States to visit India next week, where negotiations will be taken forward. So far we've had a positive and constructive engagement. We'll keep you updated with more details in this regard. In regard to your other social media post, I have not seen the social media post, but racism of any kind anywhere is unacceptable. Shipment, energy security is very important for us. We are trying to diversify our sources from across the world. That is our policy right now, and we welcome whatever support we can get from various markets across the world. In regard to specific question whether something else has also come here, I don't have an update. Perhaps shipping ministry may have, or I'll come back to you on that. मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है. इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें. बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें. धन्यवाद. हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक हैं. नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप हैं.
हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन रिटेल आउटलेट पर ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर काफ़ी एबनॉर्मल सेल है और कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड के चलते हैं और कुछ ऐसा है कि जो बल्क सेल है वो शिफ्ट हुई है रिटेल के ऊपर और प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल भी रिटेल आउटलेट पर शिफ्ट हुई है। अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ है और 6 जिलों में लगभग 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल में लगभग 38% की गिरावट है डीजल के संबंध में मैं बता रही हूँ और इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी बल्क डीजल सेल में लगभग 29% की गिरावट देखी जा रही है। गवर्नमेंट सिचुएशन को रिव्यू कर रही है और रिसेंटली सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज के साथ और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ एक मीटिंग किया है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सजेस्ट किया है कि वो स्पेशल स्क्वाड्स बनाएं और जहां पर भी इस तरह की माल प्रैक्टिस हो रही है, चाहे वो होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, उन सबको रोकने का प्रयास करें। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा सभी इंडस्ट्रियल और बल्क कंज्यूमर से ये अपील की जाती है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और अननेसेसरी स्टॉकिंग ना करें और जो उनके ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल्स हैं उनके द्वारा ही प्रोक्योर करें।